numericals. Question 1. By imparting heat to a body, its temperature rises by 15 degrees Celsius. What is the corresponding rise in temperature on the Kelvin scale? It will be same. Okay, so 1 degree on Kelvin scale and 1 degree on Celsius are equal. So hence both Kelvin and Celsius scale, the difference or the change in temperature is same. Therefore, the corresponding rise in temperature on the Kelvin scale will be 15 K. Okay, so दोनों में अलग अलग नहीं होगा. So if the temperature rise is 15 degree Celsius, Kelvin scale में it will be 15 Kelvin. Okay. Now what about this? How to do this sum? Calculate the heat capacity of copper vessel of mass 150 gram. Okay. If the specific heat capacity of copper is 410. इसको कैसे solve करेंगे? Q is equal to LM. No, it is specific heat capacity. Okay. So calculate the heat capacity. तुमने क्या बोला? What did you say? LM. नहीं वो लेटेंट हीट का है. हाँ वही तो बोल रही हूँ. C dash is equal to MC. ये वाला फॉर्मूला है. They are asking you to calculate the heat capacity. मतलब they are asking you to calculate the C dash. Okay. तो क्या होगा ये 150 ग्राम्स. तो उसको पहले कन्वर्ट करो 0.15. मतलब 150 को पहले केजी में करो. तो 0.15 इंटू 410. ठीक है अनुष्का, आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है. दे आर नॉट आस्किंग यू हीट एनर्जी. अभी सेकेंड वाले पार्ट में हीट एनर्जी पूछ रहे हैं. ओके, सो सी डैश इज इक्वल टू एम सी. 150 को मैंने केजी में किया एंड 410. हाउ मच हीट एनर्जी? तो Q इज इक्वल टू वही 0.15. कितना है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये, और डेल्टा टी क्या है 35 माइनस 25. ओके अंडरस्टूड. so just see there is a written heat capacity of a copper vessel. Okay, so one. Okay, any doubt in this case? बाकी कैलकुलेशन कर लेना. दिशा, any doubt? Preeti, Urja also has not joined today. Okay, so just let's check. So delta Q is MC delta T. Okay, now what about the second question, third question? Piece of iron mass 2 kg and उसका heat capacity कितना है 966. Okay, so what is it given? क्या दिया हुआ है? C dash दिया हुआ है. C dash is given, mass is given. Okay, can you take heat capacity? Heat capacity निकाल सकते हैं? C is equal to C dash upon M. Okay, तो कितना होगा ये? C dash कितना दिया हुआ है 966 upon M. M कितना है 2 kg. Okay, so this will be your answer. What will be the heat energy needed to warm it by 15 degree? Okay, now if okay उन्होंने second question में C पूछा है. What about heat energy based on this? क्या होगा? It will be C dash delta T. तो C dash कितना है 966. या तुम MC delta T लिखो या C dash dt लिखो. Okay, so it will be 15 minus 0. Okay, तो 15 डिग्री. तो ये भी लिख सकते हो. Okay, any doubt in this case? Yes Pranav? No ma'am, no doubt. Okay, आयुष समझा? चिन्मय, ऊर्जा, you just joined? Okay, fine. So let's go back to the fourth question. Just check. ये देखो मैंने बोला था ना
हीट एनर्जी क्या करना है, 966 इंटू 15 इतना होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, इट विल बी C डैश अपॉन M। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट अबाउट दिस, कैसे करेंगे इसमें? नाउ जस्ट ऑलवेज चेक दी हीट कैपेसिटी, और पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लेना। इफ इन दिस केस यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, ओके, सो 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो यहाँ पे किलोग्राम दिया है, सो यू नीड टू कन्वर्ट द मास इनटू केजी। तो 100 को पहले क्या करना पड़ेगा, इट विल बी 0.1 kg। so what is the तो 0.1 into mc delta t है ना, तो 390 into 70 minus 20 कितना है, 50, बस दैट्स इट, इतना ही है। so अथर्व एंड अनुष्का, यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे, फटाफट कैलकुलेशन वाला ये हो सकता है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि उन लोग आज तो डिफिकल्ट देंगे, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम है तुम्हारा आज। ओके ओके, सो 0.1 into 50, व्हाट अबाउट दिस, इसको कैसे करेंगे? सिमिलरली, मतलब उन्होंने क्या किया, Q दिया हुआ है, Q is given 1300 joule and they are asking you to find C। तो फॉर्मूला क्या है, Q is equal to mc dt। तो 1300 अपॉन मास कितना है, 0.5, और ये कितना है, 40 minus 20 is 20, तो इट इज, जो भी है सी का आंसर रहेगा। ओके, am I going fast, is it okay, because I'm not calculation and all मैं नहीं कर रही हूँ, because उतना टाइम लग जाएगा। Are you understanding the question? I hope, Yes. yeah, how to solve it, at least you should understand that। Okay, so this is very simple। Okay, what about this, now they have given you a heater, so find the time taken by 500 watt heater to raise the temperature of 50 kg of specific heat from this। So remember, so the heat supplied, okay, heat supplied by the heater will be P into T, है ना, power into time। So they are asking you the time, and this energy will be required to raise the temperature of water। ठीक है, the power, okay, or you can say the energy supplied by the heater is going to be raising the temperature of the 50 kg material of specific heat capacity। तो इसको कैसे करेंगे, पावर को 500 watt, टाइम आई डोंट नो, मास कितना है 50 kg, टी कितना है, इज इट इन किलोग्राम, यस, तो उसको कुछ करना नहीं है, 960, एंड व्हाट इज 18 माइनस, सॉरी 38 माइनस 18, 20। तो इसमें क्या करेंगे, तो T इज इक्वल टू 960 इंटू 2 होगा शायद, क्योंकि 5 5 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मैंने 2 का खत्म, तो आई थिंक इतने सेकेंड्स होंगे। एम आई राइट? कोई सोया तो नहीं है ना? नहीं मैम। हाँ, 1290 सेकेंड्स, 32 मिनट्स। तो सेकेंड्स को कन्वर्ट करो मिनट्स में, डिवाइड बाय 60। ओके, तो अनुष्का यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे वाले क्वेश्चंस। ओके, अगेन, electric heater of power 600 watt raises the temperature in 100 seconds। same thing they are giving you, so P into T is equal to mc dt। so in this they are giving you, P तो दिया हुआ है 600, सेकेंड्स कितने हैं 100, इक्वल टू मास कितना है 4 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है क्या, नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट दैट, एंड dt कितना है 5 डिग्री।
तो इसमें से C मिल जाएगा. एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? C डैश इज इक्वल टू mc. तो इसमें से C डैश मिल जाएगा. ओके फाइन. Yes, ma'am. Okay, so enough of the first question. Now let's go to the second question. Okay. Okay. Mass of 50 gram of certain metal is at 150 degree is immersed in 100 gram of water at 11. तो देखो ये जो 11 डिग्री है, this is the cold body. तो हम क्या लिखेंगे? By principle of calorimetry, heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. ये वाला फॉर्मूला रखेंगे. And the final temperature is 20. तो इसमें कैसे लिखेंगे? So mc, तो सोचो this is my hot body, so it will be, कैसे लिखते रहे? It will be T1 the, minus T. हाँ, so T1 minus T. T क्या है अपना? फाइनल टेम्परेचर. एंड व्हाट mc, दिस विल बी T minus T2. ओके, तो ये वाला जो है ना, पहला वाला, अज्यूम दिस इज माय हॉट बॉडी T1 minus T. तो एक काम करते, 50 ग्राम 100 ग्राम ना, तो 50 ग्राम ये मेरा हॉट बॉडी है. हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल आई डोंट नो, नहीं पता मुझे. ओके, और उन्होंने ग्राम में दिया है. प्लीज ऑब्जर्व, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन इन ग्राम. दैट मीन्स आई कैन यूज इन ग्राम ओनली, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ग्राम में दिया है. आई डोंट नो द सी. व्हाट विल बी 150 माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना है? 20. ओके, इज इक्वल टू वाटर कितना है? 100. एंड वाटर का ये क्या है? 4.2. एंड यहाँ पे क्या है? 20 माइनस 11. ओके ओके, इसमें से मुझे सी मिलेगा. तो ये क्या होगा? 50, अरे ये कितना होगा रे? बोल. 130 ना. सी इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा? 42 इंटू 20 माइनस 11 कितना होगा? 9. ओके फाइन. 420 ना. 420 कैसे होगा? हाँ 100 है. यस यस 420. So 0 0 cancel and then you can get. Okay, 4.2 into 100. Yes. So यहाँ पे if you observe, प्लीज ये वाले फॉर्मूलाज भूलना मत, याद रखना. मैं कैसे याद रखती हूँ? क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज ऐसे याद नहीं रहते. सो हाउ आई रिमेम्बर फाइनल टेम्परेचर. नाउ हॉट बॉडी हैज टू डिक्रीज द टेम्परेचर टू फाइनल, तो मैं उसको याद रखती हूँ. तो इट विल बी T1 minus T. और व्हाट अबाउट द कोल्ड बॉडी? कोल्ड बॉडी विल बी like the final temperature minus 11 degree. Okay, तो दिख ही रहा है तुमको. So this is the way I remember. तो ये second formula है from the first part. Okay, so now let's go to the okay, अभी यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. तुमने सब सॉल्व किया क्या अथर्व? हाँ मैम, बस एक्सरसाइज बी के थोड़े से डिफिकल्ट है. हाँ, तो लास्ट के 4 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ओके मैम ने बोला था कि इजी आने वाला है. ओके ओके, आई नो. ओके, एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड उसका ना समझ में नहीं आता कि उसको सॉल्व कैसे करना है. बट इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यहाँ पे जो भी दिया हुआ इट्स वेरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन. हाँ रिमेम्बर, 11th बी का 6th क्वेश्चन इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. आज तक लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं है. ओके तो यही थोड़ा हटके सम्स है. ओके 6th क्वेश्चन. ओके नाउ प्लीज ये वाला देखो क्वेश्चन, पहले ठीक से पढ़ो. एक तो सब कुछ ग्राम में लिखा हुआ है. नाउ फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 gram of ice at minus 10 degree Celsius with 10 gram of water at 10 degree Celsius. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? मिक्सिंग हो रही है. तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना है. हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी
is equal to heat gained by the cold body. We have to apply that formula. Okay, now in this case if you apply, तो एक काम करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने तुमको सिखाया था, -10 to 0. Okay, this is ice, huh? Then 0 ice to 0 water. Then ये तो हो गया तुम्हारा. What about the 0 water to 10 degree Celsius water? Okay. Now what about -10 to 0? Anushka, -10 to 0 क्या होगा? Which sorry. Okay, -10 to 0 क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? If it's the same state, which is the formula? MC delta T. Yes, MC dt. लेकिन ये C किसका रहेगा? Ice. Ice का. Yes. What about 0 ice to 0 water? Because there is a change in phase. ml. Okay. Or what about 0 water to 10 water? It will be MC delta T, but of water. Okay. Now in this case हमने ना ये apply किया. Okay. What about this -10 to 0? तो m क्या है यहाँ पे? सोचो 10 ग्राम into 2.1. Just observe what I'm doing. और टेम्परेचर कितना है इसका? टेम्परेचर चेंजेस -10 to 0 मतलब +10. ओके, प्लस ml कितना है? m कितना है? 10 ग्राम. l क्या है? 336 जूल्स ml. और ये वाला मास क्या है? ऑफ कोर्स मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पूरा का पूरा मास गलने वाला है, तो इट विल बी 10. ये कितना है? पानी कितना है? 4.2. और टेम्परेचर चेंज कितना है? टेम्परेचर चेंज कितना है? 10 डिग्री. 10. हाँ, तो लेकिन 0 to 10. So I don't know कि कितना raise the temperature at T degree Celsius because I don't know. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है let the whole of the ice melt and let the final temperature be T degree Celsius. Because मुझे पता नहीं जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, ओके, तो कितना टेम्परेचर चेंज, मतलब व्हाट विल बी माय फाइनल टेम्परेचर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. ओके, बिकॉज मैंने यदि पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद 10 डिग्री का पानी था. ओके, तो 10 डिग्री का पानी था. व्हेन यू आर मिक्सिंग इट विथ आइस तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. तो ओके, so let it be. So I presume that there will be some decrease in temperature. Okay. Okay. So MC delta T यहाँ पे 0 water to 10 degree water नहीं लिखना, 0 water to T degree water because I am not aware. Okay. So T minus 0. Now in this case जब आप calculate करोगे, did you understand what I am telling you? So it is heat. 10 degree of ice is getting converted, मतलब when you're mixing it into water, okay, so heat given by water at 10 degree is mixed with the ice. So what will be my final temperature? तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? बिकॉज सब कुछ गल के वाटर ही बनने वाला है, तो T minus 0. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. यस, बोलो. T minus 10 क्यों नहीं है? देखो मैं वही तुमको बोलने जा रही थी कि ऊपर वाला ये करो. ओके, रिमेम्बर यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है. हीट गेन्ड बाय द आइस, ओके, इज हीट लॉस्ट बाय द वाटर. ओके, नाउ हीट गेन्ड बाय द आइस क्या होगा? मेरा प्रेजम्पशन है कि आइस पूरा का पूरा गलना चाहिए. ओके, पूरा गलना चाहिए. तो -10 डिग्री से सीधा मैंने 0 पे किया और 0 वाटर से तुमने 10 डिग्री वाटर तुमने डाला, तो तुम्हें लग रहा है क्या कि 10 डिग्री वाटर ही रहेगा? तुमने आइस मिलाया है ना, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी समथिंग एल्स. तुमने देखो, जस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक साथ कन्वर्जन नहीं, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है. प्लीज टेक द क्वेश्चन. फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग
10 gram of ice at -10 degree with 10 gram of water at 10 degree. That means हमारा पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है और हमारा आइस -10 है, तो फाइनल टेम्परेचर फॉर आइस क्या होगा? समथिंग, कुछ तो एक रहेगा, बट -10 से क्या होगा? पहले जीरो पे आएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे mc डेल्टा टी में दिस विल बी -10, ओके, -0, क्योंकि उसको जीरो तक आना पड़ेगा। देन उसको वाटर बनने के लिए 0 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर। बट पानी जब हम मिक्स कर रहे हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस, वो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बिकॉज मैं आइस मिला रही हूँ, देर विल बी सम अदर फाइनल टेम्परेचर। तो आई कैन से द वाटर का क्या रहेगा, इट विल बी फ्रॉम 0 डिग्री वाटर टू सम टी डिग्री वाटर। वो 10 तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 10 तो कम हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। ओके, so if you check this, ऐसा तुम सॉल्व करोगे, okay, I'll explain it again also, okay, if you just observe, जब आपने T यहाँ पे दिया है ना, that heat energy gained is equal to heat energy lost, और यहाँ पे T दिया हमने, okay, what will happen? okay, see, heat energy gained, मैंने कुछ गलती किया क्या यहाँ पे? okay, just one second, मैंने एक मिस किया है शायद। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड बाय द आइस इज -10 डिग्री, वो तो पता चल गया 200 जूल, ओके। देन ml, ओके, द थर्ड स्टेप आई फॉरगॉट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर एट 0 डिग्री टू रेज द टेम्परेचर बाय T डिग्री, ओके। ओके, तो वाटर, आइस से जब वाटर बन रहा है तो 0 डिग्री, तो आई फॉरगॉट वन स्टेप, ओके, एनीवेज ठीक है, मैं वो वापस लिखती हूँ। Now just observe, when you find T, यहाँ पे नेगेटिव आता है, the final temperature is minus, okay, so this cannot be true because water cannot exist at this temperature. तो ये जो सम सॉल्व कर रहे थे, this is all wrong, okay, तो बेसिकली मैंने जो भी सॉल्व किया, ये क्या आता है, टाइम टेम्परेचर इज कमिंग, द फाइनल टेम्परेचर इज -37, ठीक है, मैं वापस सॉल्व करके दिखाती हूँ। नाउ आई कैन नॉट, यहाँ पे एक अजम्पशन था हमारा that whole of the ice was melting, okay, but this is not the case. If I say my final temperature is negative, that means my whole of the ice is not getting melted. तो कितना ice melt हुआ? So let m gram of ice is melting, okay, see, understand one thing, उसको ना एक काम करते हैं, मैं ये ना थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व करके देन आई विल टीच यू, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्बोस हैं, so let me solve in a different manner and then I will teach you, okay, so for time being मैं इसको यहाँ पे ही रखती हूँ, so I'm not teaching you the question number 6, ठीक है, okay, so let's take the other example, कौन से examples ने किया नहीं तुमने? मैम लास्ट के 4 क्वेश्चंस। ओके, 6 क्वेश्चन है ना, मैं वापस से इन अ प्रॉपर फॉर्मेट में तुमको लिख के देती हूँ, ये वर्डिंग्स में नहीं समझेगा, ओके। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? 200 gram of ice at 0 degree Celsius converts into water at 0 degree Celsius in 1 minute. ठीक है, in how much time the 200 gram of water at 0 degree will change to 20 degree? कैसे करेंगे ये? 200 gram of ice, आर्या कुछ तो हेल्प कर। 200 gram of ice at 0 degree Celsius converts into water at 0 degree Celsius in 1 minute, okay, तो पूरा का पूरा पानी बन जाता है in 1 minute when heat is supplied. तो 20 डिग्री पे करना है तो कितना टाइम लगेगा? मतलब 60 सेकेंड। तो 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले वो U is equal to L. हाँ, we have to use that formula, okay. Now rate of heat exchange is constant, okay, so power required for converting ice to water is same as power required to increase the temperature of water, समझा?
दोनों का पावर सेम रहेगा। आइस से वाटर करना है या उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर चेंज करना है फ्रॉम 0 to 20, इट विल बी सेम। So power of ice is equal to power of what? Okay, power taken by the water. Now what will be power का formula? मेरा एक ही फॉर्मूला है, E is equal to PT. तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? E upon T. ओके, तो E क्या है अपना? E is the energy. So it will be, तुमने अभी बोला ना, the ml upon time taken to convert the ice into water is mw, मतलब m water, c of water and delta t, okay, upon time taken. तो इसमें से मास क्या होगा? मास दोनों का 200-200 है, तो T2, so this will be take as T2, यहाँ पे दिया हुआ है। तो T2 will be what? Mass of water into specific heat capacity of water into delta T. delta T क्या आएगा? 20 डिग्री तक जा रहा है, and the time taken अपॉन एम आइस इंटू एल, तो आंसर आ जाएगा 15 सेकेंड। इसमें एक ही हिंट है, द पावर टेकन ओके टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज सेम एज पावर टेकन द वाटर, पावर टेकन बाय द वाटर टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 20। ओके, सो जस्ट इक्वेट द पावर एंड देन यू कैन गेट द आंसर टाइम। ठीक है, समझ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके हर्षिल, यू आर लेट, वेरी वेरी लेट, हाफ एन आवर लेट। Ma'am, my Zoom was not working. बहुत ट्राई किया, अभी हुआ तो आ गया। Okay, good. Okay, now, okay, amount of energy required to convert 1 kg of ice at minus 10 degrees Celsius, okay, completely into water at 100. So this will be what? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे अभी के लिए। आ रहे, कैसे सॉल्व करेंगे? -10 to 0 डिग्री आइस। चलिए ऐसे करते हैं, मेरे को 6 क्वेश्चन सिखाना है, तो आई विल बी टीचिंग दैट 6 क्वेश्चन लेटर। मैं वापस से उसको लिख के देन 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, then 0 degree water to 100 degree water. Now in this case if you see 1 kg ice है, तो 1 kg ice मतलब 1 kg water भी रहेगा। Now in this case they have not given you specific latent heat of ice. तो जब 0 degree ice to 0 degree water करोगे उस टाइम पे L दिया नहीं है, so it will be mc dt Delta T. plus ml, okay, plus mc dt of water, ओके, इज इक्वल टू कितना है? टोटल हीट एनर्जी कितना है? ओके, 7,77,000. हाँ, तो mc में क्या रखेंगे? 1, ये आइस का है। हाँ, mc dt जो पहले वाला जो मैं लिख रही हूँ ना, mc dt दैट इज फॉर आइस। आइस कितना है? 1 kg है ना, तो 2100। प्लीज एक बार देख लेना सब किलोग्राम में है कि नहीं। अगेन अगेन आई एम सेइंग दैट। -10, तो इट विल बी इनटू 10। 1 kg आइस 1, L दिया नहीं है, ओके, प्लस ये भी 1 ही रहेगा। व्हाट इज सी? सी कितना है? 4200। dt कितना है? 100। ओके, so you will get, okay, so normally they ask you these type of question। ना अभी तक बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो जो मैंने तुमको 6th क्वेश्चन बोला ना, वो कभी उस वाले क्वेश्चंस आए नहीं, नीदर दे हैव टेकन इट इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में भी कभी आया नहीं है। बट नॉर्मली कैसा है, हर एक कोई वो सम करवाता ही है। ओके, तो मैं वापस वो करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स मीट, लेस देन 1 मिनट है।